ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಹಬ್ಬ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಿಂದ ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಹೇಗೆ ಪಥಚಲನೆ ಆಯ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಹ ಜೀವನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದ ಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀ ರೂಪಂ ಜಾಗ್ರತ್ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹ ಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನ ಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನ್ಯೋಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವ್ಯೋಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಸರ ಪದವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾಗರತ್ನ ಮಾತಾಜಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾಗರತ್ನ ಮಾತಾಜಿಯವರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡುವವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಅಂತ ವಿಚಲಿತರಾಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. आज के इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि हमारे साथ बने हुए हैं रघुनाथ दास प्रभु जी. सो रघुराम दास प्रभु जी है और रघुराम दास प्रभु जी के लिए मैं हिंदी में थोड़ा बोलने के लिए कोशिश कर रही हूँ. आज का कार्यक्रम में पहला एक पुरंदर दास का एक कृति का गाना अभी भजन सुनाने वाले हैं नागरत्न माता जी. सो नागरत्न माता जी ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಮಯಿ, ತುಂಬಾ ವಿನಮ್ರರು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾನ್ ಹಾಡ್ತೇನೆ, ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಹಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಸೊ ನಾಗರತ್ನ ಮಾತಾಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾಗರತ್ನ ಮಾತಾಜಿ, ಓವರ್ ಟು ಯು. You can start singing. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी, ಹೇಳ್ಬೋದು. हरे कृष्ण माताजी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय द्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त गौरवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. सकल ग्रह बलनीने सरसिजाक्षा निखिल रक्षक नीने विश्वव्यापकने. सकल ग्रह बलनीने सरसिजाक्षा रविचंद्र बुध नीने राहु केतुवो नीने. रविचंद्र बुध नीने राहु केतुवो नीने. कवि गुरु शनियु मंगलनु नीने. दिवरात्रियो नीने नवविधानवु नीने. भवरोग हर नीने भेषजनु नीने.
ಗ್ರಹ ಬಲ ನೀನೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ ಪಕ್ಷ ಮಾಸವು ನೀನೆ ಪರ್ವಕಾಲವು ನೀನೆ ಪಕ್ಷ ಮಾಸವು ನೀನೆ ಪರ್ವಕಾಲವು ನೀನೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ ತಿಥಿ ಕರ್ಣನು ನೀನೆ ಅಕ್ಷಯವೆಂದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾನವ ಕಾಯ್ದೆ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ದೀನ ರಕ್ಷಕನು ನೀನೇ ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ನೀನೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ ನಿಖಿಲ ರಕ್ಷಕ ನೀನೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕನೇ ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ನೀನೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ. ಇನ್ನೊಂದು ಗೋವಿಂದಂ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಮಾತಾಜಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಂ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನ ಕಾರಣ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅವತಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಮಂದಮತೆ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಮಂದಮತೆ ಜವರಾಯ ಕರೆದಾಗ ಯಾವ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡರು ಜವರಾಯ ಕರೆದಾಗ ಯಾವ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡದು ಯಾವ ರಕ್ಷಣೆ ಬರದು ಕಲಿತ ವ್ಯಾಕರಣ ಯಾವ ರಕ್ಷಣೆ ಬರದು ಕಲಿತ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಮಂದಮತಿ ಬಿಡು ಮೋಹದನ ಕನಕ ಬರಲೆಂಬಾಸೆ ಬಿಡು ಮೋಹದನ ಕನಕ ಬರಲೆಂಬಾಸೆ ಬಿಡುಬೇಕೆಂಬಾಸೆ ಬೇಡವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿ ಬಿಡುಬೇಕೆಂಬಾಸೆ ಬೇಡವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿ ದುಡಿದು ಬಂದುದರಲ್ಲೇ ಇರು ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಬಂದುದರಲ್ಲೇ ಇರು ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಆನಂದವ ಕಾಣು ಮನದಿ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಮಂದಮತಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವರು ಪರಿವಾರದ ಜನರು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವರು ಪರಿವಾರದ ಜನರು ಆತನು ವಿತ್ತ ಗಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಕುವ ತನಕ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವರು ಪರಿವಾರದ ಜನರು ಆತನು ವಿತ್ತ ಗಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಕುವ ತನಕ ವಿತ್ತ ಕಾಣದು ಅವರ ದೇಹ ತತ್ತರಿಸಿದಾಗ ವಿತ್ತ ಕಾಣದು ಅವರ ದೇಹ ತತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೇಳರು ಆತನ ವಾಗ್ಲಾಪವನು ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೇಳರು ಆತನ ವಾಗ್ಲಾಪವನು ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸೋ ಮಂದಮತಿ ಧನ ಕನಕ ಯೌವನಗಳ ಮದ ಬೇಡ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಜವರಾಯ ನಿನ್ನದು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಮೋಹವ ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿನ್ನದು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಮೋಹವ ತ್ಯಜಿಸಿ ಜ್ಞಾನವನು ಗಳಿಸಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನು ಸೇರು ಜ್ಞಾನವನು ಗಳಿಸಿ
ಪರಬ್ರಹ್ಮವನು ಸೇರು ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಮಂದಮತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಗಂಗಾ ಜಲವನು ಹನಿ ಸೇವಿಸೆ ಸಾಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಗಂಗಾ ಜಲವನು ಹನಿ ಸೇವಿಸೆ ಸಾಕು ಎಂದಾದರೊಮ್ಮೆ ಮುರಾರಿಯ ಭಜಿಸೋ ಸಾಕು ಎಂದಾದರೊಮ್ಮೆ ಮುರಾರಿಯೇ ಸ್ಮರಿಸೆ ಸಾಕು ಯಮನು ಯಾವ ಚರ್ಚೆಯ ಮಾಡನು ಯಮನು ಯಾವ ಚರ್ಚೆಯ ಮಾಡನು ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸೋ ಮಂದಮತಿ ಮರಳಿ ಜನನ ಮರಳಿ ಜನನ ಮರಳಿ ಮರಣ ಮರಳಿ ಜನನ ಮರಳಿ ಮರಣ ಮರಳಿ ಜನನಿಯ ಗರ್ಭ ಮರಳಿ ಜನನಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಯನ ಸಹಿಸುವುದು ಬಲು ಕಷ್ಟ ಸಂಸಾರ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವ ಮುರಾರಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಪಾರುಗಾಣಿಸಯ್ಯ ಮುರಾರಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಪಾರುಗಾಣಿಸಯ್ಯ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಮಂದಮತಿ ಅರ್ಥಾನರ್ಥವೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ನಿತ್ಯವೂ ಧನದಿಂದ ಸುಖಲೇಶವು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಪುತ್ರನಿಂದ ಭಯವಿರುವುದು ಧನಿಕನಿಗೆ ಪುತ್ರನಿಂದ ಭಯವಿರುವುದು ಧನಿಕನಿಗೆ ನೀತಿದು ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರರಿಗೆ ನೀತಿದು ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರರಿಗೆ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಮಂದಮತಿ ಗುರುಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ನೀಡು ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಡೆ ಗುರುಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ನೀಡು ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಡೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವೆ ಹೃದಯದಿ ದೇವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವೆ ಹೃದಯದಿ ದೇವನ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಮಂದಮತೆ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಸು ಮಂದಮತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಮಾತಾಜಿ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧೆ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಈಗರ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ಪ್ರವಚನ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ರಘುರಾಮ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ರಘುರಾಮ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ
पहले तो मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ क्योंकि आपका नाम हमने गलत समझ लिया। वो तो चाणक्य प्रभु जी हमने डाला था लिंक और इसमें गोपी सेना के पोस्टर पर, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि वो रघुराम दास है करके। सो इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। सो अभी आपका जो इंट्रोडक्शन है मैं कन्नड़ में बताने वाली हूँ। ಸೊ ರಘುರಾಮ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಜುಹು ಇಸ್ಕಾನ್ ಮತ್ತು ಖಾರ್ಗರ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಒಂದು ಜನರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅವರ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ಇವರ ಸೇವೆಯಿಂದ, ಇವನ್ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಇವರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮದ್ವೆ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಭಾಗವತಂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬಾ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಹು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सो रघुराम दास प्रभु जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सो हम लोग आज बहुत खुश नसीब है कि आपका हमें संग मिला है। सो हम लोग चाहते थे कि मकर संक्रांति के बारे में बहुत कुछ जाने। आज तक हम लोग अच्छी तरह से तिल और गुड़ खाते आ रहे हैं, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ज्यादा नहीं पता है। आपने आपका ज्ञान से हमें आपके ज्ञान से हमें इस मकर संक्रांति के पर्व के ऊपर जो भी इसके महत्व है आपको बता के ना हम लोगों को थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। सो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू माता जी। सबको मकर संक्रांति का शुभकामनाएं। यस, मंजू माता जी ने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन ये सब किए थे, और माता जी ने बहुत अच्छा कीर्तन वगैरह गाए थे, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ऐसा एक मौका देने के लिए। मैं ज्यादा कहीं ऐसे लेक्चर वगैरह ऐसा दिया नहीं हूँ, लेकिन सब लोग का निवेदन था कि लेक्चर देने का। सो मैं मुझे जो भी थोड़ा बहुत आता है उसको मैं शेयर करता हूँ, मेरे नॉलेज को। बस उतना ही है। सो हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, यस। ओके, हम यहाँ पर अभी जुड़े हैं। देखिए, सब लोग तो हम देखे ही रहेंगे मकर संक्रांति इसमें मैं एक्चुअली साउथ इंडियन हूँ, और मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर रहेगा, समझने का कोशिश करें। ओके, एक मिनट। ये वीडियो ऑफ करके बात करूं क्या? मुझे नहीं बोलने आ रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, प्लीज। यस प्रभु। प्रभु जी, आप अगर आपकी वीडियो ऑन रखेंगे तो सबको आपकी मतलब ज्यादा इंटरेस्ट रहेगी, लेकिन उतना प्रॉब्लम हो रही है तो ऑफ कर दीजिए प्रभु जी, कोई बात नहीं। ठीक है माता जी, मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू। ओके, ठीक है। मकर संक्रांति इसमें
सब लोग तो जानते ही हैं ऑलरेडी, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे रहेंगे, फिर भी हमको बहुत कुछ जानना है उसके अलावा भी। देखिए, मकर संक्रांति का मतलब यही है, मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहा है। जब सूर्य प्रवेश कर ही रहा है तो हमारा तो साइंस बोलता है कि सूर्य हिलता नहीं है, एक ही जगह पर है, लेकिन प्रवेश कर रहा है। तो ये इसमें समझ में नहीं आता है ऐसे क्यों बोल रहे हैं, या साइंस इसके साथ नहीं जुड़ता है। हिंदुइज्म साइंस के अंदर है कि नहीं है, हमारा सनातन धर्म शास्त्र वगैरह साइंस के साथ जुड़ता है कि नहीं है, ऐसा डाउट आता है। लेकिन ये साइंटिफिक है, ये हम आज देखेंगे कैसे साइंटिफिक ये काम कर रहा है। ऑलरेडी देखे रहेंगे आप लोग, फिर भी मेरे समझ में जितना आया है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, उससे पहले हम और भी कुछ देखते हैं। वेद में 2 गणना है, वो है चंद्र और सूर्य, ये दोनों को रख के एक गणना कैलेंडर बनाते हैं, उसके अनुसार ये कैलेंडर चलता है। उसके अलावा संक्रांति 12 संक्रांति आते हैं और इसमें 4 संक्रांति बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो है मेष, कर्क, तुला और मकर। ऐसे 4 संक्रांति को इंपॉर्टेंट मानते हैं। और उसके अलावा ये उत्तरायण 6 महीने बंटते हैं, ठीक है। तो वो 6 महीने में देवताओं का सोने का समय रहता है, दक्षिणायन सोने का समय रहता है, उत्तरायण जग जाते हैं। तो इसके कारण जो भी ये दक्षिणायन जो है, पूस दक्षिणायन में देखिए ऐसा होता है कि रावण का वध और 1 मिनट, रावण का वध और हाँ महाभारत और हिरण्यकशिपु का वध, ये सब उसी समय पर हुआ है, ठीक है। तुम कौन सा, ये दक्षिणायन में हुआ है। जो दक्षिणायन में अंधेरा ज्यादा होता है, उजाला कम होता है, दिन कम होता है और रात ज्यादा होता है। तो इसके कारण उस समय पर ये अंधकार में जो है वो सब काम उससे पहले ही हो जाता है। जब ये सब होता है तो दक्षिणायन शुरू हो जाते हैं। एक मिनट, दक्षिणायन खत्म, फिर उत्तरायण शुरू होता है, ठीक है। यस, 1 सेकेंड। यस, हरिबोल। सो ये और इसी दिन पर चैतन्य महाप्रभु का संन्यास भी हुआ था, तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण समय है। और इसके अलावा भीष्माचार्य, अब हम भीष्माचार्य के बाद बहुत जानते हैं ऑलरेडी, भीष्माचार्य कौन है, महाभारत में उनका रोल क्या था। लेकिन देखो उनका सोच ऐसा है कि इच्छा मृत्यु, एक तो उनके पास वर था, होते हुए उन्होंने क्या किया, उसका सही इस्तेमाल किया। सो उत्तरायण जब तक नहीं आता है तब तक मैं अपना शरीर से प्राण नहीं छोड़ेगा, ऐसा उनका इच्छा उन्होंने बनाया बाद में। इससे हमको समझ में आता है कि ये उत्तरायण कितना इम्पोर्टेंट है। सो ये उत्तरायण कैसे आया, कैसे पता चलेगा, ये गणना मैथ्स के द्वारा ही पता चलेगा। वो मैथ्स कहाँ से आया, तो वो सब एस्ट्रोलॉजी आया है वेद से। वेद किसने दिया है, भगवत गीता 15.15 में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, अगर वेद से जानना है तो भगवान कृष्ण को जानना है, और उस वेद को बनाया किसने, भगवान ने ही बनाया है। सो ये जो भी हम फॉलो कर रहे हैं आज के दिन में, ये भगवान के द्वारा ही दिया है। अब जब भगवान के द्वारा दिया है तो साइंस के साथ तो जुड़ना ही चाहिए, अगर नहीं जुड़ता है तो फिर त्रुटि है, तो भगवान तो कोई त्रुटि नहीं रखते हैं। तो ये कैसे और साइंटिफिक है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और ये मकर संक्रांति, इसको हम अकेले नहीं बनाते हैं, मतलब मकर संक्रांति एक नाम है, ठीक है। ये नाम में हर एक स्टेट में अलग अलग नाम से वो लोग इसको मनाते हैं। यूपी में खिचड़ी पर्व ऐसे फेस्टिवल का नाम से मनाते हैं, और गुजरात में पतंग, इस समय में पतंग उड़ाते हैं और स्वीट देते हैं।
और तमिलनाडु में पोंगल पोंगल बहुत फेमस है आज के दिन में। सो मैं साउथ इंडियन से हूँ, तमिलनाडु से। तेलुगु हूँ लेकिन तमिलनाडु से ही है। सो मुझे पोंगल के बारे में अच्छे से पता है। तो सूर्य पोंगल ऐसे नाम बोलते हैं। सूर्य माने सूर्य को ये पोंगल बनाते हैं, क्योंकि जो भी खेती बाड़ी करते हैं उनको सूर्य का बहुत जरूरत है। सूर्य अगर नहीं है तो इस जगत में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए वो सूर्य को अपना फर्स्ट फर्स्ट जो दान लेके आते हैं, उस दान को सूर्य को अपना क्या बोलते हैं, वफादारी। मुझे हिंदी इतना नहीं बोलने आ रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उनको उनका वफादारी दिखाने के लिए सूर्य को पोंगल बना के ऑफर करते हैं। उसमें गन्ना और गुड़ और राइस और घी, ये सब मिक्स रहता है। ये सबका अलग अलग मीनिंग वो बताते हैं, फिर भी हम इतना ही जानते हैं आज के दिन में। और ये महाराष्ट्र में, अब मैं तो महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई में, तो यहाँ पर क्या करते हैं मराठा लोग कि तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला, ऐसे बोलते हैं। तो मकर संक्रांति यहाँ पे भी बनता है लेकिन अलग नाम से। और असम में पोगोली बाहू ऐसे नाम पे मनाते हैं। और पंजाब में एक दिन पहले ही मनाते हैं इसको। और से मैं यहाँ पे भी तमिलनाडु में देखा बोगी करके मनाते हैं। सो बोगी के दिन जो भी पुराना है वो सब जला देते हैं। जैसे रावण को ऑलरेडी भगवान ने वध कर दिया, तो वैसा ही हमारे घर में जो भी पुराने चीज है उसको सब जलाते हैं एक्चुअल में, जो नहीं चाहिए वो सब। तो उसमें हमारा मन में भी बहुत सारे काम क्रोध ये सब रहता है, इसको भी जला देना चाहिए। और नया सा समय आ रहा है तो नया से शुरू करना चाहिए, ये भी हम देखते हैं। और बंगाल में गंगा सागर ऐसे नाम पर फेस्टिवल ये मनाते हैं। उनका तो और भी अच्छा फास्ट टाइम है। 6,000 पूर्वज उनके 60,000 पूर्वज पाप से बंधे रहते हैं। पाप माने क्या, श्राप से। लेकिन उनको मुक्त करने के लिए भगीरथ महाराज गंगा जी को लेकर आते हैं, तो वो बंगाल में उसका भी फेस्टिवल मनाते हैं, यही मकर संक्रांति के दिन। और उसके अलावा हमने देखा चैतन्य महाप्रभु का संन्यास भी इसी दिन में हुआ है। ओके। तो ये सब है कि एक ही फेस्टिवल को हर स्टेट में अलग अलग बनाने का, अलग अलग नाम से भी मनाते हैं। तो इससे हमको समझ में आता है कि इंडिया एक है, और इंडिया के अंदर नाम अलग अलग हो लेकिन इंडिया में एक ही जैसा सब कुछ चलता है। ठीक है। ओके, तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अभी हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है, कैसे है, ये सब मकर संक्रांति ये फेस्टिवल बना है, तो ये सब एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, इसमें स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना मैं? हरे कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी, आप शेयर कर सकते हैं, आप को होस्ट है। यस, एक मिनट। देखिए, हम जब आकाश में देखते हैं, देखो यहाँ से तो पहला आकाश में ही देखते हैं हम, तो हमको कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, फिर भी हमारे पूर्वज ने बहुत सारा तपस्या कर कर, ठीक है, उनके पास ऐसा एक टेक्नोलॉजी था कि आप जाके देख सकते हैं। मतलब वो ग्रहों में प्रवेश कर सकते हैं, इतना अच्छा उनके पास टेक्नोलॉजी था। इसका अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया में जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये जब होता है, तो विदेश लोग नासा उसको पूछते हैं कि सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है। तो वो उनका टाइम डेट ये सब देते हैं कितना समय तक है। और उस इंफॉर्मेशन को उनको पाने के लिए करोड़ों रुपए का सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि आज सूर्य ग्रहण होने वाला है, इतना समय से इतना समय।
लेकिन इंडिया में अगर किसी को सूर्य ग्रहण के बारे में जानना है तो क्या करेंगे? पहले, अभी तो इंटरनेट ये सब है, पहले समय पर क्या करते थे, अपने गांव में जो भी पंडित है उनको पूछते थे सूर्य ग्रहण कब है, तो वो बोलते थे पंचांग देखकर इतना समय से इतना समय है, तो गर्भवती बाहर मत आओ, अपने घर में जो भी खाना पक है उसमें कुशाग्र उसको डाल के रखो। ಹರೇ आ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಮ್ಗೆ हाँ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರ ಫ್ಲೋ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ದಂಡವತ್ हाँ ಪ್ರಣಾಮ. थैंक यू माता जी। ओके, सो सो हमारे इंडिया में यहाँ पर पंचांग देखते हैं पंडित और बताते हैं कि इतना समय से इतना समय में सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो सोचिए उनका कितना पैसा खर्चा हुआ रहेगा, 200-300 कितना तो करोड़ों रुपया खर्चा होने के बाद ये इन्फॉर्मेशन उनको मिल रहा है। लेकिन हमारे इंडिया में पंचांग उस समय पर 2 रुपए में आता था, तो 2 रुपए में वो सूर्य ग्रहण के बारे में बता देते थे, और उतना ही नहीं और भी बहुत कुछ बताते थे। सो तो मेरा ये कहना है कि ये सब इंफॉर्मेशन पहले से हमारे पास है और साइंटिफिक है, इसीलिए हम आज के दिन में भी ये देख पाते हैं, वरना ये नहीं देख पाते। ये हो गया, और इसके लिए हम बहुत कम खर्चा करते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी है। ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये फोटो आपको दिख रहा है सबको? यस प्रभु जी, दिख रहा है। यस। तो यहाँ पर देखिए एरीज ऐसे नाम का है, ये टॉरस, ये एक्चुअली आंख में दिखता नहीं है, आकाश में है ये, ठीक है। ये एक नक्षत्र समूह को मिलाकर एक राशि बना है, ठीक है। ऐसे 12 राशियां बने हैं, और ये 12 राशि कैसे बने हैं तो हम देखते हैं, एक मिनट। ये फोटो देखिए, पहले तो वो जो मैंने पहले बताया था उसके अनुसार ये सब राउंड रहता है, ठीक है। तो ये राउंड हमको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए इसको अपने ऐसे स्क्वायर में बनाया है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एरीज जो लिखा है एक राशि है, ठीक है। हमारे पास 3 भूत पंचभूत है, ठीक है। पंचभूत में थोड़ा मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, आप कंटिन्यू कर दीजिए, हम लास्ट में उनको एक बार उसका सारांश बताएंगे कन्नड़ में। ओके ओके, ठीक है माता जी। तो देखिए ये है मेष राशि, ऋषभ, मकर, सॉरी, ऋषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, ऐसे ये सब अपने भाषा में रहते हैं, लेकिन मेरे पास वो फोटो नहीं मिले तो मैंने ये वाला ही ले लिया है, ठीक है। एक, ओके, ठीक है, तो ये मैंने ये वाला फोटो ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें है ना, ओके ओके ओके, ये एक महीने का नाम लिखा है, चैत्र, ये तमिल में एक्चुअली लिखा है, ऐसे ही हिंदी में आता है, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसे ये नाम आते हैं, चैत्र, विशाखा, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे नाम आता है, श्रवणा, ठीक है। ये सब नाम इन्होंने कैसे निकाला है ये हम देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ये राशि कैसे आया ये हम देखते हैं। पंचभूत है, पंचभूत में आकाश जो है ऑलरेडी आकाश में ही है, उसके अलावा और 4 भूत है, 4 एलिमेंट, उस 4 एलिमेंट को इस राशि में यूज किया है, तो उसमें 4 राशि और 3 मोशन, इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 एलिमेंट और 3 मोशन को हम जब एक मिनट,
एक एलिमेंट ऑलरेडी आकाश में है, उसको हम नहीं ले रहे, ठीक है। उसको 4 एलिमेंट पृथ्वी, वायु और अग्नि, जल, ये 4 एलिमेंट को 3 मोशन के साथ जब जोड़ते हैं तब आता है 12 राशि, ठीक है। इस 12 राशि के अंदर नवग्रह का नक्षत्र है, तो उस नक्षत्र को नवग्रह को भी ये नक्षत्र को बांट के दिया है। इसमें आता है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्षा, ऐसे 27 नक्षत्र है। ये 27 नक्षत्र भी नवग्रह को ही दिया है, 3 9 27। ऐसे ये मेष, इसको मेष है, ऋषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, ठीक है। ये जब कर्क राशि है ना, इस राशि में जब पृथ्वी इसके अपोजिट में रहता है, कर्क राशि के अपोजिट में पृथ्वी रहता है। इस पृथ्वी को इस राशि से एनर्जी मिलता है, बीच में सूर्य है ना, तो उस सूर्य से यहाँ पर इसका एनर्जी मिलता है। तो तब उस समय पर जो महीना होता है वो है नहीं, कुछ तो एक महीना आता है, इसी यहाँ से एक महीने को निकालते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर है चैत्र, ये जो महीना है, इस राशि में सूर्य यहाँ पर आता है, मेष राशि में। तो ये मेष राशि में इसका 180 डिग्री यहाँ पर पड़ता है दूसरे राशि में। तो यहाँ पर है चित्रा नक्षत्र, तो उन्होंने चित्रा नाम नहीं दिया, चैत्रा ऐसे नाम दिया है। तो ये हो गया पहला महीना। उसके बाद ये दूसरा महीना यहाँ पर आता है पृथ्वी, और पृथ्वी के बीच में है सूर्य। सूर्य का जो पृथ्वी को मिलने वाला एनर्जी है वो है यहाँ से, वृश्चिक राशि से। सो इससे मिलता है, विशाखा नक्षत्र है तो यहाँ से मिलता है दूसरा महीना वैशाखा। और उसके बाद ऐसे ही स्टार्टिंग जो नक्षत्र है उसको रख के ही अलग अलग महीने आते रहते हैं। तो हमारा 12 राशि है, इसके लिए हमारे पास 12 महीना आए हैं, ठीक है। और इसके अलावा चंद्र का तो आपको पता है, तिथि, पौर्णमी, जब सूर्य से वो दूर जाता है उस समय एक मिनट, सूर्य से जब दूर जाता है उस समय कृष्ण पक्ष, फिर सूर्य के पास जाता है तो अमावस्या हो जाता है। सूर्य से पृथ्वी और आगे दूर जाता है तो चंद्र, क्या बोलते हैं उसको, पौर्णमी। तो ये चंद्र से ही गणना होता है तिथि का, और पौर्णमी, अमावस्या, इसका सब। ओके, ठीक है। 1 मिनट, देखिए ये 12 राशि और 27 नक्षत्र और नवग्रह, ये सब जब आप प्लस करोगे तो 48 ऐसे आएगा। तो ये 48 जो है एक मंडल, ऐसे आपने सुना होगा, ठीक है। जब आयुर्वेदिक में दवा देते हैं तो एक मंडल के लिए आपको दवा खाना चाहिए, ऐसे बताते हैं। एक मंडल कहाँ से आया ये, तो ये इसको राशि और नक्षत्र ग्रह को जब ये करते हैं तो 48 डेज आता है, उसमें से ही हमको ये मंडल ऐसे 48 डेज ये मिलता है। और हम देखते हैं कि नहीं, 108 माला जप करना चाहिए, ऐसे हम सुनते हैं। 108 बार मंत्र बोलना चाहिए, और जो भी रहेगा आपको 100 ऐसे 8 जुड़ जाएगा, 1008, 108, 1,08,000 ऐसे जुड़ेगा। ऐसे क्यों है? क्योंकि ये 27 नक्षत्र को 4 में जब डिवाइड करते हैं तो इसका अंक मिलता है 108, तो ये स्पिरिचुअल नंबर बन गया है।
ठीक है, और वो 108 को ही हम स्पिरिचुअल में यूज करते हैं हर जगह में, ठीक है। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसका, क्योंकि मनी मंदिर औषध ऐसा 3 है। मनी मतलब टाइम, वो टाइम हमको कहाँ से पता चलेगा? एस्ट्रोलॉजी के अंदर से, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी है, इसीलिए हमको पता चल रहा है आज समय क्या है, और दिन क्या है, महीना क्या है, साल क्या है, इसका सब नाम है, इसीलिए हमको पता चलता है, ठीक है। ये अगर नहीं रहेगा एस्ट्रोलॉजी, तो हमको ये पता बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। उसके अलावा मनी मंदिर औषध, मंदिर माने मंत्र, जो भी हम मंत्र बोलते हैं उस सबका एक पावर रहता है। जैसे महामंत्र तो हम जब करते ही है, तो उसका क्या प्रभाव है हमको पता है। वैसे ही और भी वेद में मंत्र है, उसका प्रभाव है। औषध, अब औषध जो है पहले तो आयुर्वेदिक ये सब था, तो उसमें से ही लोग देते थे। अभी देखो, अभी औषध देते हैं लेकिन काम नहीं करता है। तो ये क्यों नहीं करता है काम? क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट ऐसा है कि पहली बात, जो भी औषध बन रहा है जड़ी बूटी से, वो जड़ी बूटी में जो भी ताकत है वो उसमें रहता नहीं है, निकल जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ, मलई तांगी ऐसे एक जड़ी बूटी है। वो जड़ी बूटी को वो मनी प्लांट जैसे बढ़ता है, उसको एक रोल करके उसके ऊपर एक 50 किलो वेट, एक आदमी का वेट हम उसके ऊपर रख देंगे, तो वो 10 मिनट में उसको ढकेल देगा, उस बार उसको ढकेल देगा। तो होगा क्या? उसका इतना पावर है कि इतना वजन वो उठा सकता है, छोटा सा जड़ी बूटी। तो अभी उसको जब जमीन से निकालते हैं, तो उसके बाद उसका काम नहीं करेगा वो जड़ी बूटी, क्योंकि मर गया है, ठीक है। तो वो मरने के बाद काम नहीं करेगा, तो फिर उसको क्या करना है? जिंदा रखना है। तो इसीलिए उसको जो एक श्राप है, उस श्राप को निकालने के लिए भी मंत्र दिया है। फिर उसके बाद उसका जान उसके ही बॉडी में रहे, उसके लिए भी मंत्र दिया है। तो वो सब मंत्र बोलकर जब निकालते हैं, तो उसका जान उसमें रहता है और वो पावरफुल काम करता है। तब वो जड़ी बूटी काम करता है, उससे पहले तक उतना पावरफुल काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया औषध ऐसे देने का। लेकिन ये औषध कब देने का? अमावस्या में नहीं करना है, पौर्णमी में नहीं करना है। तो ये कब करना है? तब वो पावरफुल रहेगा। जैसे कि असुर लोग रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जैसे कोई डकैती करना है, चोरी करना है, अटैक करना है, तो रात में ही करते हैं, दिन में ये लोग नहीं करते हैं। दिन में देव लोग बहुत पावरफुल रहते हैं। जैसे उत्तरायण शुरू हो रहा है, तो देवता लोग ज्यादा पावरफुल रहता है, तो उस समय करना चाहिए। तो समय का भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बोलते हैं ना, सुबह दोपहर शाम 3 बार करो, तो उनका नॉलेज के हिसाब से वो बोलते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक में जड़ी बूटी निकालने है कौन सा समय में और कब देना है। और जब व्यक्ति आता है हमारे पास, ठीक है, तो एक ब्राह्मण के पास ही ये तीनों गुण रहे, तीनों स्किल रहता है। वही डॉक्टर है, वही ये दिन ये सब देखता है, पंचांग वगैरह। और औषध, मनी मंदिर औषधम, मंत्र भी वही बोलता है। तो ये तीनों काम एक ही व्यक्ति करता है, तो उसको कॉम्बिनेशन ये वो, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है कि ठीक करने के लिए। लेकिन ये वाला फील्ड आज के दिन में सब अलग अलग है। ज्योतिष अलग काम कर रहा है, डॉक्टर्स अलग काम कर रहे हैं, और मंत्र बोलने वाले अलग काम कर रहे हैं। तो ये सब सब अलग हो गया, तो इसका फायदा भी हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारा आस्था है कि ये सब काम करेगा, लेकिन ये सब तीनों जुड़ेगा तब काम करेगा। अलग अलग होने से काम इतना ज्यादा नहीं करता है, ठीक है। सो ये हमको जानना है। देखो, जैसे पेट में हम अच्छा अनाज देंगे, अच्छा सा रहेगा हमारा शरीर। लेकिन हम भूख मिटाने के लिए कोई थोड़ा सा मैदा भी खा लेंगे, तो भूख मिट जाएगा, लेकिन स्वस्थ हम नहीं रह पाएंगे। उसी तरह आज के दिन में जो मेडिसिन वगैरह चल रहे हैं, वो ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन वेद मंत्र ये सबके अनुसार हम अगर मेडिसिन खाएंगे, तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, ठीक है। तो ये है मणि मंत्र औषधा, ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे कि काल चक्र। आपने बहुत बार सुना होगा, काल चक्र है, ऐसा नाम ही सुनते हैं, काल पुरुष है, लेकिन उसको हम कहीं देखते नहीं है, ठीक है। तो दो बात है। अब देखो, अग्नि है, अग्नि देवता है,
तो ये दोनों एक साथ है लेकिन अलग अलग भी है, ये आपको जानना चाहिए। जैसे देवता है वे अलग से है, लेकिन उनका एनर्जी अलग से है। अभी हमारे घर में हम अग्निदेव को बुलाकर हम उनको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अग्निदेव को बुलाकर उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर पूछेंगे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अग्नि को हम कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, हम स्विच ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक को कंट्रोल कर रहे हैं। और जब हम गैस हम फ्लेम कम ज्यादा करते हैं तो अग्नि को ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक एनर्जी भी है और अलग से देवता भी है। उसी तरह काल काल जो देवता है वो अलग से है। काल देवता और कोई नहीं, यमराज है, ठीक है। किसका एंड करना है वो यमराज जानते हैं, ठीक है। तो उसी तरह काल एस्ट्रोलॉजी के अंदर आता है काल चक्र, ठीक है। वो काल चक्र और कोई नहीं है, यही है जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। ये हम पहले देखे थे ऊपर, ये राउंड शेप में है, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं हमारे अनुसार इसको हमने करके रखा है। तो इसके अंदर जो नक्षत्र है यही सब ये सब मिलाकर ही काल चक्र है, ठीक है। अब वेद में हम देखते हैं, वेद अंग को 6 में बांटा है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता, चंदा और ज्योतिषा। देखिए ये 6 है ना, इसमें ज्योतिष को जो है आई बोलते हैं, आंख बोलते हैं इसको। अगर कोई व्यक्ति को हम सब कुछ है उसके पास, दिमाग बुद्धि है उसके पास, शरीर है, बल है, सब कुछ है, लेकिन आंख उसका बंद कर देंगे तो क्या होगा? वो दिखेगा नहीं, कहीं भी जाकर गिर सकता है। वो नहीं चल पाएगा, ना कुछ कर पाएगा जब तक उसका आंख नहीं है। तो इसलिए आंख बहुत इंपॉर्टेंट है। आंख के बिना कुछ भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। आई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आई ज्योतिष को बोला है वेद। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि हम शास्त्र को जब पढ़ेंगे, समझेंगे, ये ज्योतिष को साइड में रखकर कुछ समझना चाहेंगे तो उतना हम नहीं समझ सकते। मैं भक्ति का नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। भक्ति तो भगवान को जब प्रेम करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन जब शास्त्र को समझना है, ये क्यों है, क्या है, कैसे किए हैं, ये विधि वगैरह क्यों किए हैं, इसको इसी महीने में इस दिन में क्यों करना है, फेस्टिवल्स क्यों ऐसे मनाते हैं, ये सबका रीजन ज्योतिष के अंदर छुपा है। इसको हम निकाल कर, शास्त्र में जो भी बात बताया है उसको हम ज्योतिष को निकाल कर देखेंगे तो कोई खिलौना जैसा हमको लगेगा, कोई ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं ऐसे लगेगा। लेकिन जब ज्योतिष को रख कर देखेंगे तो ये इतना साइंटिफिक है, इतना लॉजिक है इसके पीछे, वो हमें समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कैलेंडर को, हमारा जो वैदिक कैलेंडर बना है वो ज्योतिष को रखकर ही बनाया है। और इसके अलावा जैसे कि एग्जाम्पल, हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में देखो काला कलर कहीं यूज नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं यूज करते हैं काला कलर? तो यहाँ पर हमको ये रीजन मिलेगा, ऐसे ही आचार्य ने बताया है और हमको उसको फॉलो करना है। लेकिन ये ज्योतिष के अंदर जब जाते हैं तो हमको और अच्छा इसका समझ मिलता है। जैसे कि सूर्य है, सूर्य से 7 ग्रह है, ठीक है। सूर्य, बुध, मंगल, और उसके बाद चंद्र, बुध, सॉरी बुध तो पहला गया, गुरु और शनि। शनि जो ग्रह लास्ट में आता है, ठीक है। ये जब लास्ट में आता है तो इसके शनि के पास साइंटिफिकली देखेंगे तो सूर्य का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है और बहुत दूर है, तो इसके कारण उसका प्रभाव ज्यादा नहीं है। तो उधर उजाला कम है, इसके लिए वहां पर क्या बोलते हैं, बर्फ का गोला जो है बहुत ज्यादा है वहां पर, बर्फ का पहाड़ है, ठीक है। ओके यस, तो बर्फ का पहाड़ वहां पर ज्यादा है। एक मिनट, ठीक है, वहां पर बर्फ का पहाड़ है तो वहां पर उजाला नहीं पड़ता है,
लेकिन देखिए हमारा इधर वैदिक में क्या बताया है, शनि मंदिर अगर कोई आप गए हैं तो उस मंदिर में देखिए शनि का कलर जो है ब्लू ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसका वाहन देखिए वो काला रहता है, वाहन कौवा। उसके बाद उसको एक तेल चढ़ाते हैं, तिल का तेल, वो भी काला। और शनि का एक भाई है, वो है यमराज, वो भी देखो वो भी काले। उनका एक वाहन है भैंस, वो भी काला। यमतूद अजामिला कथा में हम देखे रहेंगे, वो भी काले। सो ये शनि का जो कलर है काला है, ठीक है। और ये काला कलर तमोगुण में आता है, ठीक है। ये काला कहाँ पे आता है, कोई चीज खराब हो जाता है तो वो काला बन जाता है, ठीक है। और हमारा शू है, शू के नीचे कौन सा कलर होता है, काला। तो वैसा ये तमोगुणी कलर है काला, इसीलिए हम मंदिर में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो ऐसा हम ज्योतिष को नहीं लेकर कुछ भी हम देखते हैं तो हमें ये नहीं दिखता है, तो इसीलिए हम ज्योतिष को रख कर देखेंगे तभी हमको ये सब समझेगा, ठीक है। ओके, देखिए एकादशी, एकादशी के बारे में अगर जानना है तो शास्त्र में तो उसके बारे में बहुत सारे एकादशी महात्म्य बहुत कुछ है, उसका क्या है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखते हैं, तमिल में प्रथम तुतीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी, दशमी तक 10 दिन हो गया है, ऐसा उसका मतलब है। 10 के बाद जो नंबर रहता है, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, खत्म हो जाता है 15 दिन, ठीक है। लेकिन ये एकादशी 11वां दिन जो है, उस दिन एकादशी मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं। उसके अलावा साइंटिफिक देखे तो बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि एकादशी के दिन बॉडी में कुछ अलग मुझे नहीं बोलने आ रहा है, कुछ अलग ये होता है, तो उस वजह से उस दिन उपवास रहना चाहिए, ऐसा साइंस ये लोग बोलता है। लेकिन हम हमारा श्रद्धा भगवान पे रखते हैं, तो इसीलिए इसको हम ज्यादा कुछ महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। यस, सॉरी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन आपका कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता पाएगा। यस, ओके, यस बोलिए माता जी, हरे कृष्णा। हरे हम कृष्णा। यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा प्रभु जी, आपका हिंदी तो बढ़िया ही है। आप बोलते हैं कि हिंदी अच्छा नहीं है, साउथ इंडियन नहीं बोला, हम लोग भी साउथ इंडियन नहीं, कोई कोई बात नहीं। बहुत अच्छा आपने समझाया, और आपके व्यस्त जीवन में भी आपने हमारे लिए समय निकाला। सो बहुत बहुत आपके हम लोग आभारी हैं। सो ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು Hare ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ Krishna. ಕೇಳ್ಬೋದು. Malika, you can ask your question. हाँ, ओके माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इट वाज अ नाइस क्लास। मैं लाइक एस्ट्रोलॉजी कृष्ण का भक्त जीवन में कितना अवश्य है, क्योंकि कृष्ण भक्त ऑलरेडी सरेंडर सोल्स। सो एस्ट्रोलॉजी कितना आवश्यक है कृष्ण भक्त के लिए? ओके, देखिए ऐसा है कि भगवान भगवत गीता में 18.66 में बोलते हैं ना कि सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं व्रजम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आप मेरे शरण में आओ, बस मैं आपको संभालता हूँ, ठीक है। हाँ, आपको मोक्ष वगैरह मिलेगा, चिंता नहीं करो, हाँ, अब थोड़ा भी टेंशन नहीं लो। अब आता है माता जी सरेंडर, है ना, सरेंडर करने के लिए बोल रहे वे। हाँ, ठीक है। अब होता है क्या, एक एक डिवोटी को तबीयत खराब होता है, ठीक है। तो वो डिवोटी क्या करते हैं नेक्स्ट, तो वो जाते हैं हॉस्पिटल, ठीक है। ठीक है। हॉस्पिटल जाते हैं, दवा लेते हैं, दवा खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन आप सोचो
क्या सबसे बड़े डॉक्टर धन्वंतरी है? हाँ धन्वंतरी के पास जाने से धन्वंतरी ठीक कर सकते हैं, मना तो नहीं किए। भगवान स्वयं है, वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन उतना हमारा सरेंडर है क्या कि भगवान ठीक करेंगे हमें? हमारा कम रहता है। जैसे एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज को इतना दृढ़ निश्चय था कि भगवान से देख लेंगे क्या करना है। तो उनके पिताजी बोल रहे हैं विष पियो, दे दो हम पीते हैं, ओम नमो नारायण, पी लिया। तो उतना सरेंडर हमारा जब रहेगा तब भगवान हमें डायरेक्ट आकर बचाते हैं, चलो मैं हूं अभी, ठीक है। लेकिन उतना नहीं सरेंडर है तो भगवान बोलते हैं आप डॉक्टर के पास जाओ, वो भी हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो आपको ठीक करेंगे। आयुर्वेद ये सब भगवान ने ही दिया है, जब आप उधर भी जाकर ठीक कर सकते हो। ज्यादा सरेंडर है तो मैं भी कर लेगा, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भगवान का मानना है। तो इसीलिए जी हम जितना एक स्टेप रखते हैं उतना ही भगवान भी हमारे प्रति रखते हैं, है ना। हाँ। उनका स्टेप बड़ा होता है, तो तो हमारा आप सरेंडर इतना नहीं है, तो इसीलिए हमको एस्ट्रोलॉजी का मदद लेना चाहिए। तो आप आ, बोल रही है हम सब माया में है, मटेरियल एग्जिस्टेंस में है, तो हमारा हम्म लाइक वी हैव टू टेक दैट कर्मा, लाइक नो दोस माया का एनर्जी का वो क्या है ना, इस दैट एनर्जी में है, इसलिए हमको ये सब वी हैव टू टेक इट व्हाट हाँ एवर इट्स मदर, देयर। हाँ यस। हम यहाँ पर पृथ्वी में है ना, तो पृथ्वी का हाँ नियम को भी हम थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर वास्तु वगैरह देख के हम घर बनाते हैं ना, क्योंकि वो हाँ एनर्जी स्टेबल रहता है। तो वो आई मीन इसीलिए वो सब है ना, लाइक या the हम्म same answer then. Yeah, for vastu, for marriage, for whatever the हम्म ceremonies, no. So हम्म yeah, according to you, हम हम्म वो astrology को believe करना है। हाँ, बिलीव करना है इसलिए कि वो काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। ओके, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यस यू। यस। हाँ यस, क्या होता है ना हरे माता जी। हाँ हाँ यस यस, मैं भी कुछ अलग से कहना चाह रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी को हम समझ रहे हैं कि हम मतलब बहुत से लोग समझ रहे हैं कि वो काम तो नहीं करता है, तो उसको क्यों लेना है, ठीक है। क्योंकि लोगों का एक्सपीरियंस भी ऐसा है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उन्होंने कह दिया इनका 7.5 ही चल रहा है। किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उन्होंने कह दिया कि आपको मंगल दोष है, आपको काल सर्प दोष है। तो फिर ये सच में काम कर रहा है कि नहीं हमको पता ही नहीं चल रहा है, बस बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, क्योंकि हमको शास्त्र के ऊपर विश्वास है इसलिए हम मान लेता है, ठीक है। लेकिन ये सच में ऐसा नहीं है। जब एक व्यक्ति का हॉरोस्कोप हम निकाल कर देखेंगे, उसके बारे में बहुत सारे बातें बता सकते हैं, और उसका अभी कैसे टाइम चल रहा है, क्या चल रहा है, उसका स्वभाव क्या है, एक्चुअल में उसका स्वभाव क्या है, वो हम हॉरोस्कोप देख के ही बता सकते हैं। तो इतना जब निपुण व्यक्ति रहेगा माता जी, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। वरना हम कहीं ना कहीं जाकर फंस जाते हैं। तो इसीलिए डिवोटी क्या बोलते हैं पता है, कुछ डिवोटी बोलते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाओ, कुछ डिवोटी बोलेंगे मत जाओ। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्शन हमको कंफ्यूज होता है, जाना है या नहीं जाना है। सो बात यह है, हाँ, एक व्यक्ति 2 माला चैंटिंग कर रहा है, और वो डिवोशनल कर रहा है 2 माले से, और वो जाता है एस्ट्रोलॉजर को मिलने के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी जब देखता है तो उसको कोई ना कोई दोष ऐसे रहता है, तो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आप अभी इस ग्रह का मंदिर जाओ और ये वाला ग्रह का मंत्र चैंट करो। तो वो मंत्र चैंट करते करते वो छोड़ देता है महामंत्र। फिर जब ये डिवोटी को सुनने में आता है, बहुत दुखी होते हैं डिवोटी कि 2 माला कर रहा था, एस्ट्रोलॉजर के पास गया, वो भी चला गया, इससे अच्छा है एस्ट्रोलॉजर के पास ही मत जाओ, ठीक है। लेकिन कोई डिवोटी रहेगा, तो वो डिवोटी ये नहीं बोलेगा कि फाइनल नवग्रह है। वो डिवोटी बोलेगा ये नवग्रह को काम देने वाला परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, तो उनका सरेंडर हो जाओ, आपको बाकी सब नॉर्मल हो जाएंगे। तो ऐसा है माता जी, इसीलिए डिवोटी हाँ भी बोलते हैं, ना भी बोलते हैं। एक अच्छा डिवोटी एस्ट्रोलॉजी के पास जब जाएंगे तो आपको अच्छे से वो गाइड कर पाएंगे। यस, और कोई क्वेश्चन? भारती माता जी, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾರತಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ?
ಓಕೆ. ಲೀಲಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था आपसे। आपने 108 हाँ नंबर कैसे आया आपने बताया था, वो उसका थोड़ा डिटेल मुझे मिस हो गया। आपने कुछ तो 27 नक्षत्र डिवाइडेड हाँ बाय 4, तो 108 नहीं आ रहे, तो कैसे आया मेरे समझ में नहीं आया। प्रभु जी थोड़ा समझाएंगे। ओके, 27 नक्षत्र को 9 में डिवाइड करें, 9 9। में। ओके ओके। अच्छा अच्छा, तो 108 आते हैं, तो ये ऑस्पिशियस नंबर वहां से आया, ठीक हाँ है। हाँ। अच्छा अच्छा। और ये राशि कैसे आया वो भी बताया रहेगा। ये हाँ तीन आप, तीन मोशंस है ना, उसको हाँ 4 भूत के साथ जब जोड़ोगे हम्म, तो आ जाएगा 12। ओके। हाँ प्रभु जी, और बताते हैं कि वैसे इस लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, मेरा एक हाँ हाँ। प्रश्न था कि डिवोटियों का वैसे कुंडली बदलता रहता है उनके साधना के साथ, ऐसा होता है? हम्म। हाँ बिल्कुल माता जी, होता है ऐसे। अच्छा। डिवोटी जब चैंट करते हैं ना, देखो म- मंत्र बहुत पावरफुल है माता जी, ठीक है। हमारा ओके। साधना में बहुत इंपॉर्टेंट किसको दिया है, कलयुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र है हमारा। जो संस्था है इसको जानते हैं हरे कृष्ण हरे रामा के नाम से। इसको कौन बोलने नहीं आता है, बहुत से लोग को पता भी नहीं रहेगा, लेकिन हरे कृष्ण हरे रामा के नाम से जानते हैं। तो ये मंत्र है ना माता जी, बहुत काम करता है। उसका एक प्रभाव है, जो नवग्रह इनको भी काम करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए मंत्र का चैंट करने से बिल्कुल उसका असर पड़ता है, और डिवोटी का जीवन बदलता है, और बहुत से ग्रह के प्रभाव से बचते हैं। बस बस मंत्र के साथ साथ थोड़ा सा गाइडेंस रहेगा माता जी, तो और अच्छा काम करता है। जैसे हमको मंत्र तो चैंट करने से बेनिफिट मिलेगा बता दिए, लेकिन नियम बताते हैं, क्या बोलते हैं, आप थोड़ा सा सुबह उठ के चैंट करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा सात्विक फूड खाओ, उससे ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो उसी तरह एस्ट्रोलॉजी ये नियम ही बताता है कौन सा समय में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर हम उसके अनुसार करते हैं तो वो काम बनता है हमारा। फिर नहीं तो जो समय में हमको नहीं करना है उस समय में कर कर हम उसको तकलीफ में डाल देते हैं। अच्छा। एग्जाम्पल, किसी का अभी दशा चल रहा है, शुक्र महादशा, ठीक है। शुक्र हाँ महादशा उनका कर्म स्थान को लेकर चल रहा है, तो उनको लगेगा कि अभी बिजनेस करना चाहिए मुझे। तो बहुत इंट्यूशन होगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे, और वो व्यक्ति बिजनेस भी करेंगे। लेकिन उनका भाग्य में बिजनेस उनको फायदा नहीं देने वाला है। तो क्या हो गया, इंटरेस्ट बन रहा है लेकिन काम नहीं बन रहा है, तो वो बिजनेस में नहीं सफलता होता है। लेकिन कोई व्यक्ति रहते हैं उनका भाग्य अच्छा है लेकिन अभी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उनको बताना पड़ेगा कि देखो आपका इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन यही जगह से आपको मिलने वाला है, जो भी सुकृति मिलना है वहां पर उनको भेजना चाहिए तो मिल जाएगा। ऐसा है माता जी। ओके। अपने साधना पर हमें निर्भर होना चाहिए, आप ऐसे बिल्कुल बता रहे हैं। बिल्कुल माता जी। जब हम सुबह उठकर जब चैंटिंग करते हैं ना, ये ग्रह भी कैसे काम करते हैं। पहला जो सोच है वो दिमाग में ही लेके आते हैं कि ये करो ये नहीं करो। कोई व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट भी होना रहेगा ना, तो उसको 11 बजे होना रहेगा, तो 1 घंटे पहले उसके घर से निकालेगा, अभी जाओ इधर आपका एक्सीडेंट करवाना है। तो वो जो सोच है उसमें से ही बनता है ये ग्रह का इन्फ्लुएंस। तो जब महामंत्र करते हैं तो एक तो हमको वो ग्रह का इन्फ्लुएंस कम करवाता है, ठीक है। दूसरा, हमारा डिवोटी एसोसिएशन की वजह से शास्त्र हमको ज्ञान देते रहता है, तो हम उसमें नहीं जाते हैं। हम बोलते हैं सही गलत गलत छोड़ दो, फिर हमारा गुरु महाराज ने बताया ये नहीं करो, नहीं करेंगे, ऐसा फिर हम छोड़ देते, नहीं करते, तो फिर हम बच जाते हैं, वरना हम भी फंस जाएंगे। मैंने ऐसे डिवोटी का ये हॉरोस्कोप ज्यादातर देखो, डिवोटी का हॉरोस्कोप आता है तो मैं वो देख के मुझे आश्चर्य भी होता है और बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। जैसे कि उनका हॉरोस्कोप में अ, अपमान ये सब होने का रहता है, ठीक है। ओके। हाँ जी। लेकिन नहीं हुआ है, तो अभी क्या समझेंगे कि अपमान नहीं हुआ है।
तो ऐसा भी हो सकता है कि हॉरोस्कोप गलत निकला। लेकिन हम क्या किया, वही भक्ति से पहला वो समय आता है, हिस्ट्री कैन रिपीटेड, हिस्ट्री रिपीट होता रहता है। तो भक्ति से पहले भी वो समय आया है, तो पूछते हैं प्रभु जी आपका भी इस समय पर कैसे था, ये इस साल का 2015 कैसे था? हाँ हमारा अच्छा नहीं था। तो ठीक है 2021 में सेम रिपीट हुआ है समय, अब कैसा है? आप बोलते हैं ठीक है, उतना हमको परेशानी नहीं है। तो यही है माता जी बात, कि भक्ति में आने से पहले है ना एग्जैक्ट काम करता है, भक्ति के आने के बाद उसका प्रभाव कम होता है। अच्छा, यस नहीं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। रूपा माता यस। जी, आपका कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेस किया हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, बोलिए। हरे प्रभु कृष्ण। जी मेरा एक प्रश्न है, अगर हम्म अब अभी हमारे सपोज कुंडली लेके जाते हैं, वो कुछ ज्योतिष बोलते हैं आपके ग्रह गति ऐसा है, आपको हवन करना है, ये करना हम्म है, वो करना है, लेकिन हम्म। आजकल के कलयुग में हवन भी शुद्ध नहीं होता। तो हाँ माता जी, इसके लिए कोई उपाय है क्या, बिन बोलता हूँ माता जी। हवन के? ओके, आपका प्रश्न समझा कि हवन ये सब करने बोलते हैं, ये काम करता है कि नहीं, या करना है कि नहीं। हाँ, और अगर सपोज आजकल में कोई ऐसा प्योर शुद्ध नहीं मिलते हैं ना हवन यस यस वगैरह, माता जी। तो ये तो आप असर ही नहीं होता है फिर। तो इसके लिए कुछ तोड़ है क्या? आपका समझ बहुत अच्छा है माता जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ लिया है, और ऑलरेडी आपने आंसर रखा है आपके पास। सो ये कैसा है ना माता जी, त्रेता युग में, त्रेता युग में जब दशरथ महाराज को पुत्र भाग्य नहीं था, तो उन्होंने पुत्र कामेश्वर यज्ञ किया था। तो उस समय पर वो यज्ञ सफलता होने के लिए देखो, उनके पास बहुत सारे वशिष्ठ ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, लेकिन फिर भी उन्होंने श्रृंगी ऋषि को ही चुना, क्योंकि वो इतना अच्छा ब्रह्मचर्य पालन करते थे और बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं, इसलिए। ठीक है, तो आप भी कोई यज्ञ वगैरह करते हैं तो सच है माता जी, बहुत अच्छे डिवोटी होना चाहिए, तभी वो यज्ञ का सफलता मिलता है, वरना नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप सही बोल रहे हैं। तो हमारे डिवोटी कोई व्यक्ति को देखना चाहिए, आप समझ रहे हैं? हाँ प्रभु जी, लेकिन यस। अभी सपोज कोई डिवोटी नहीं रहता है, बेचारे वो लोग जाते हैं ज्योतिषी को दिखाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं, बेचारे करवा लेते हैं, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं होता। उन लोगों का क्या करना चाहिए प्रभु जी, जो डिवोटी नहीं रहते, शुद्ध नहीं रहते भी, वो उनको कोई भी आप बोलता है तो वो विश्वास कर लेते हैं ना, वो लोग करवा लेते हैं, पैसा खर्च करके इतना यस हवन माता जी। करवाते हैं, फिर भी वो नहीं होता है। तो हाँ ये सब, तो उनके लिए क्या सजेशन होगा प्रभु जी? यस माता जी के, आपको अच्छा डिवोटी का ही सजेशन करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद भी यही बोलते हैं, बहुत सारा स्किल है सबके पास। ठीक है, जैसे अमेरिका के पास बहुत स्किल है, लेकिन उसको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। एक अंधे को उठा के एक आंख दिखने वाला जब कंधे में बिठा लेता है, तो वो दोनों एक जगह पहुंच जाते हैं। उसी तरह अब आपको पता है क्या करना है, लोगों को पता नहीं है क्या करना है, तो उनको आप रास्ता दिखाना चाहिए। हाँ, अगर अगर डिवोटी है, उनके पास इतना यज्ञ हवन करने के लिए पैसा नहीं है प्रभु जी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं प्रभु जी? देखिए माता जी, अभी हमको अ, एक मिनट, एक तो महामंत्र है ही है माता जी। ठीक है, हाँ, सबका ये रामबाण हमारे पास महामंत्र है, उसको चैंट करना चाहिए, उससे भी बहुत कुछ बदलते हैं। उसके अलावा कुछ करना चाहते हैं तो उनका क्षमता के अनुसार डिवोटी सजेशन करेंगे माता जी, ओके। तो दिक्कत नहीं है, डिवोटी वो देख लेंगे उनके लिए क्या करना है। ज्यादा ज्यादा नहीं तो कम पैसे में करते हैं, पैसा भी क्या, वो हवन ये वो उसके लिए ही लगता है, तो वो डिवोटी देख लेते हैं। जो भी ब्राह्मण रहेंगे ये सब करने वाले, वो अच्छे से उनके अनुसार ही करते हैं। और ये एक अच्छा है कि इस्कॉन के जो ब्राह्मण होते हैं, वो दक्षिणा में ज्यादा बोलते नहीं है कि इतना ही हमको देना चाहिए, ऐसा नहीं बोलते। वो बोल देते हैं कि आपकी मर्जी से जो भी ब्राह्मण को देना है दे दो। तो इसलिए डिवोटी ओके माता जी, ठीक है, वे ओके, संभाल लेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत वेलकम प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। माता हरे जी कृष्ण। आप पूछिए, मैं पूछती बाद में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अब हमको 7:30 शनि चलता रहता है, हमको बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। इससे हरे कृष्ण मंत्र से निवारण होगा क्या? निवारण कर सकता है क्या? ओके, यस माता जी, आपका अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोग का ये प्रश्न रहता है। तो हम देखते हैं माता जी कि हमारे पास देखो एक अप्रोक्सीमेट मैं ये अंक बता रहा हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए। ठीक है, लोग पूरा दुनिया में 700 करोड़ से भी ज्यादा ही रहेंगे, फिर भी हम अप्रोक्सीमेट पकड़ते हैं 600 करोड़। उस 600 करोड़ लोगों को 12 ही राशि है हमारे पास, उससे ज्यादा राशियां नहीं है। तो वो 12 राशि में ये 600 करोड़ लोगों को जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है एक राशि में 50 करोड़ लोग, 50 करोड़। ये 50 करोड़ लोग भी एक राशि में हैं। तो अभी कहाँ चल रहा है? कुंभ राशि में अभी शनि चल रहा है। तो कर्क राशि के लोगों को सबको है ना माता जी, अष्टम शनि है, 7.5 ही चल रहा है। तो ये 50 करोड़ लोग को भी ये ऐसा शनि चलेगा क्या? आप बताएं माता जी, हो सकता है ऐसे? नहीं होता। तो भगवान ने ना माता जी जो भी बनाया है इस पूरा दुनिया में, एक जैसा दूसरा चीज बनाया ही नहीं है। आप जुड़वे बच्चे भी देखोगे ना, दिखने में सेम रहेंगे, लेकिन उनका गुण स्वभाव और वो पढ़ाई, उनका शादी, ये सब कुछ अलग रहता है। जैसे हम कोई एक पेड़ का पत्ता अगर ले ले, तो पूरा पेड़ का पत्ता दूर से सेम दिखता है, लेकिन जब पास में जाओगे ना, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर और ऊपर का शेप और उसका कलर, ये सब में वेट, ये सब में आपको डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, तो अगर एक जैसा भगवान ने दूसरे को बनाया ही नहीं है इस पृथ्वी में, तो लेकिन एक ही जैसा 7.5 बोल रहे हैं ना, तो फर्स्ट वो कॉन्सेप्ट जो है 7.5 का, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको ज्यादा हम सीरियस नहीं लेना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, 7.5 होने से भी माता जी आप कुछ डरने का जरूरत नहीं है। महामंत्र करो तो वो आपको रक्षा करता है। यस, अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ यस। प्रभु जी, आपसे एक प्रश्न है प्रभु जी। जैसे हम तो करते हैं महामंत्र के चैंटिंग हम लोग, लेकिन हमारी फैमिली में बच्चे, हस्बैंड लोग, वो लोग सब नहीं करते हैं जैसे, है ना। तो प्रभु जी हमें क्या करना चाहिए? जैसे उनकी एस्ट्रोलॉजी उनकी दिखानी चाहिए कि मैं अपना तो हमें नहीं दिखाते हैं हम लोग, लेकिन बच्चों का या हस्बैंड का जो नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उनका दिखाना चाहिए प्रभु यार जी, आपके हिसाब से। यस, तो ये ऐसा है माता जी, फर्स्ट हम उसको उनको भक्ति में लाना चाहते हैं, है ना, ये आपका पहला प्रश्न है। प्रभु जी हम तो बहुत चाहते हैं आने का, लेकिन कृष्णा कृपा या उनकी इच्छा जब होगी, उनकी मेहनत, उन सब से ही आ सकते हैं ना प्रभु जी। यस, यस हम माता जी, प्रे कर सकते हैं कृष्णा से कि लेकर आइए आप ना, सही लेकिन बात जब है तक माता जी। नहीं आते तब तक मत प्रभु जी। यस, हाँ। मैंने एक बार बोला था माता जी प्रभु जी को, हमारे काउंसलर को, इस ग्रेस नवगौर कृष्णदास प्रभु जी है, मैंने जी बोला था प्रभु कि जी। प्रभु हमें आशीर्वाद करो कि आज हम पूरा भगवत गीता से डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाएंगे। वो बोले कि अच्छा आप है ना, मैं तो आशीर्वाद दे दिया हूँ, लेकिन आप ठीक से नहीं करोगे तो इल्जाम मेरे पे मत लगाओ। वही वही मैंने प्रभु आशीर्वाद नहीं जी। दिया। हाँ, जी प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब वही कहना, परमात्मा तो साक्षी है, लेकिन मेहनत तो हमें करनी है, कोशिश तो हाँ हमें माता जी, करनी है, मैं उनके ये बिना बता तो रहा हूँ कुछ माता जी, नहीं। एक तो उनके हॉरोस्कोप देख के हम पता कर सकते हैं कि वो हाँ, भक्ति वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, ऐसा देख हाँ, सकते हैं प्रभु जी। देख हाँ। सकते हैं फर्स्ट। सेकंड है माता जी, सभी जो डॉग्स है ना, उसको सूंघने का क्षमता होता है। जी प्रभु जी। होता है, उसके साथ साथ उसको ट्रेनिंग देंगे तो वो ज्यादा अच्छा वो काम करेगा। उसी तरह माता जी, आपको आप भी आप कभी से माता जी इस्कॉन ज्वाइन किए? प्रभु जी बहुत काफी टाइम हो गया, 10 ईयर से ज्यादा हो गया 10 इस्कॉन ईयर, ज्वाइन ओके, करते हुए। 10 हाँ। ईयर्स। यस माता जी, मैं समझ रहा हूँ।
10 ईयर्स बाबूजी से करती पहले है थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा, लेकिन कैसे कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। जैसे बच्चे हम छोटे थे तो फिर भी करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम्म बड़े होते हैं तो वैसे वैसे हम्म और कम होता जाता है प्रभु जी, है ना। हाँ माता जी, समझ रहा हूँ मैं। एक तो हम देखेंगे कि हॉरोस्कोप के अनुसार वो कितना अच्छा भक्ति करेंगे और क्या क्या समय उनके लिए फेवर है, वो तो हम देख सकते हैं। उसके अलावा भी माता जी, आपको भक्ति में आने के लिए कोई फोर्स किया है क्या? नहीं प्रभु जी, उनको हमने किसी ने तो फोर्स नहीं किया ये हमको सब एक करने बात के लिए। समझ में आता है कि भक्ति को लाने के लिए किसी को फोर्स करके नहीं ला सकते, वो फेल हो जाएगा, नहीं आएंगे वे। वही 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 प्रभु जी, उसके लिए हम ज्यादा क्या फोर्स। कर सकते हैं, बहुत अच्छा उनका सेवा करना पड़ेगा। हम्म बहुत अच्छा उनका, ऑलरेडी आप माँ हो या कोई भी आप रिश्ता हो तो सेवा तो करते रहेंगे। लेकिन जो भी भक्ति सीख रहा है ना माता जी, हमको ही देख के सीख रहा है। वो मंदिर जाके या उधर से इतना ज्यादा नहीं सीखता है जितना पास में रह के हमसे सीखता है। तो इसीलिए हम जितना अच्छा करेंगे, हमसे सीखते सीखते वो बनेंगे, वो पता भी नहीं चलेगा हमको। हाँ वो तो तो है बस आप प्रभु जी। कोशिश करते रहिए अच्छे से, भक्ति हम्म, करें अपने आप का, बाकी का भी हाँ हो जाएगा माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस। अच्छा प्रभु जी, एक और बात है, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी हम्म का बोल रहे थे, लेकिन हम्म देख हम अगर किसी को भी दिखाएंगे, हम तो अपनी तरफ से जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर होता है उसको ही दिखाएंगे, ठीक है। हम्म लेकिन क्या होता है, सब एस्ट्रोलॉजर अलग अलग बात बोलते हैं, एक ये बोलेगा एक यस दूसरा बोलेगा, तो किसकी बात पे विश्वास करे कुछ भी समझ नहीं आता है यस प्रभु माता जी जी, ना। इसमें हुआ क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम्म, जेमिनी, पारासारिया और भी बहुत सारे विद्वान आए हैं। उत्तरा कालामृत ऐसे बुक लिखे हैं, कालिदास, उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर अपना टिप्पणी किया है। तो ऐसा बहुत सारे विद्वान अपना अपना टिप्पणी किए हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो सब लोग अलग अलग एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, तो अलग अलग प्रेडिक्शन आते हैं। तो दिक्कत होता है, हमारे जैसे आम व्यक्ति को दिक्कत होता है कि किसका हम माने। तो सबसे अच्छा है माता जी कि जी प्रभुपाद प्रभु जी। बोलते हैं ना कि हम्म, सब भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन कोई भक्त नहीं बन रहा है। लेकिन हमारे हाँ इस्कॉन का प्रभुपाद का लिखा हुआ भगवत गीता पढ़ता है तो भक्त बनता है, मतलब काम कर रहा है ना। उसी जी तरह जो प्रभु जी। एस्ट्रोलॉजर आपको अच्छा प्रिडिक्शन देता है, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में या आपके बारे में जो भी अच्छे से बता सकता है, वो हम्म, आगे के बारे में भी बता सकता है, तो उससे आपको प्रिडिक्शन लेना चाहिए। जी प्रभु जी, यस वही माता जी, वही। हाँ ठीक है, थैंक यू इसमें प्रभु। डायरेक्ट हाँ एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ हाँ, जी प्रभु जी, बिल्कुल वही ना प्रभु जी ना। हाँ ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, यस, हरे मैं कृष्णा भी जब प्रभु जी। एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैंने आया माता जी, मुझे हम्म ऊपर ऊपर से भरोसा था। जैसे कि हम्म वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब नासा से पता करते हैं, लेकिन हम तो हमारे पंचांग से पता करते हैं। जी तो जी। इसके अनुसार मुझे इसमें बहुत बिलीव था। और हम्म मैंने वो बुक पढ़ा था न्यूमरोलॉजी के बारे में। हम्म न्यूमरोलॉजी भी बहुत अच्छे से एक ग्रह काम करता है, इसका प्रमाण हम न्यूमरोलॉजी में भी देख सकते हैं। न्यूमरोलॉजी कोई अलग नहीं है, 1 से 9 ग्रह को ही न्यूमरोलॉजी ओ, में डिवाइड किया है। अच्छा ये लेकिन पार्ट ऑफ उसमें, एस्ट्रोलॉजी ही है एक तरह से हाँ, मतलब। यस माता जी, लेकिन उसमें प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं एग्जैक्ट। तो हाँ तब ये प्रेडिक्शन के बारे में जब जानना चाहते हैं तो फिर वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाता है, हमारा वैदिक। हाँ तो फिर हाँ। वहां से प्रेडिक्शन आता है कि इसका शादी कब होगा, इसको जॉब कब मिलेगा। तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन में जाता है वो, ठीक है। तो ऐसा है माता जी। तो स्टार्टिंग में मुझे भी इतना ज्यादा बिलीव नहीं था, लेकिन धीरे 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 जब अंदर जाके रिसर्च किए तो देख के हम शॉक हो गए, इतना सारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल वो काम कर रहा था। ओ ओके ओके, यस, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे वेलकम कृष्णा। माता जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु, धन्यवाद। वेलकम वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु एक डाउट है, हाँ ये हमारे हॉरोस्कोप होता है ना, वो हाँ प्रीवियस लाइफ का कर्म के हिसाब से होता है। हाँ, आप यस इसके माता बारे जी। में कुछ बोल सकते हो? हाँ, तो अभी होता है क्या है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है, अच्छा प्रश्न पूछा है। हाँ, हम इस जन्म में हमारे पास जो भी है माता जी, वो पिछले जन्म का बचा हुआ ही हमको मिल रहा है। नया सा इस जन्म में हमने डायरेक्ट कुछ लेके नहीं आया है। पिछला जन्म में जो हमने छोड़ दिया है, जहां पर भी हमारा ब्रेक हुआ है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके लिए दशा भुक्ति अंतरा ऐसा एक सेक्शन है हॉरोस्कोप में। तो उसमें जब जाते हैं तो
गर्भम चंद्र होगा, मतलब गर्भ में जितना समय गया उसके बाद वाला समय से ये वाला काल शुरू हो रहा है। जब आप लोग जन्म लेते हैं तो आपका एक जन्म नक्षत्र होता है ना। हेलो, हरे कृष्ण। प्रभु सुनाई दे रहा है। हाँ, ओके। एक जन्म नक्षत्र होता है ना, वो नक्षत्र वो कैलकुलेशन के अंदर दिखाता है कि आप कितना जीवन में आपका कितना जगह आप पार किए हो और कितना आगे पार करना है, वो कैलकुलेशन वो बताता है। समझ रहे हैं? तो इस जन्म में जो भी मिला है माता जी, वो पिछला जन्म का ही मिला है, उसके अनुसार ही चल रहा है। समझो कि एक व्यक्ति जन्म ले रहा है, तो जन्म लेते ही उसका अच्छा एग्जाम्पल है ये पक्षी और जो भी एनिमल्स है ना, वो लोग जन्म लेते ही उनका स्वभाव के अनुसार काम करते हैं, उनका जो भी स्वभाव बना के रखा है उसके अनुसार। तो इसको है ना माता जी पहले ही ट्रेन करके भेजते हैं। एक तो पाप किए रहेंगे तो नरक में ट्रेन करके भेजते हैं, या तो कुछ अच्छा पुण्य किया है तो पिछले जन्म का ही स्वभाव इस जन्म में बनता है। समझ रहे माता जी? हरे कृष्ण। वीणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। और Yes. प्रभु आई हैव वन मोर डाउट, ये भक्ति होता है ना, ये भी प्रीवियस लाइफ से कंटिन्यू होता है? हाँ, यस, ये प्रीवियस लाइफ से कंटिन्यू होता है। अगर किसी का प्रीवियस लाइफ में नहीं है, उसने बहुत कोई अच्छा डिवोटी का सेवा कर दिया है, तो फिर उसको इस जन्म में ऐसे भी भक्ति मिलता है माता जी। भगवान भक्तों के कृपा से भी भक्ति मिलता है। जैसे आपको बताओ ना माता जी, किसी व्यक्ति को है ना 1 साल के लिए भक्त बनने का समय आता है, ठीक है, उसके भाग्य में नहीं है, लेकिन भक्त बनने का समय आता है एक साल के लिए, सिर्फ 1 ईयर के लिए। तो उस समय में भक्तों का कृपा इतना उसको बढ़ जाता है, बहुत अच्छा भक्ति करता है वो। फिर वो जो समय जाता है उसके बाद भक्ति उतना नहीं होता है, लेकिन भक्तों का कृपा है, हमारा ऐसा इस्कॉन संस्था है, ये उनको ध्यान देकर अच्छे से लेक्चर में वगैरह लेके चलते रहता है, तो उससे और अच्छा भक्त बन जाते हैं, भाग्य में नहीं होते हुए भी। तो इसका मतलब हर हमेशा एसोसिएशन में होना चाहिए उनको। हाँ माता जी, ये एक अच्छा है माता जी, यहाँ पे एक बार रजिस्टर हो जाता है ना, उसको छोड़ते नहीं है इस्कॉन वाले। प्रभु, थैंक यू सो मच। यस, वेलकम माता जी। और कोई प्रश्न है? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಭುಜಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये इस्कॉन ज्वाइन होने के पहले हम एस्ट्रोलॉजर के बहुत डिपेंडेंट थे प्रभु जी। अब जब इस्कॉन ज्वाइन हो गए ना, अभी पूरा हम वो महामंत्री मेन है, कुछ जाप करने से कुछ करने से फायदा नहीं है बोल के हम चेंज कर दिया प्रभु जी। मेरे को सीखना बहुत इंटरेस्टेड है प्रभु जी उसमें। ओके ओके, ठीक है। यस माता जी, देखो भक्ति करने से हमारा क्या बोलते हैं उसको, हमारा एक मोटिवेशन ये सब बढ़ जाता है माता जी, आत्मा का जो विश्वास और जो इंथुजियाज्म ये सब बढ़ जाता है, बहुत अच्छा हमारा भक्ति चलता है। हाँ, लेकिन ये जैसे हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, उसी वैसे ही है ये एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, ये भी भगवान ने ही दिया है, तो इसका हम गाइडेंस ले रहे हैं। कोई डिवोटी आता है, सॉरी एस्ट्रोलॉजर आपके लाइफ में आएगा और पूरा सब कुछ चेंज नहीं कर देगा आपका लाइफ को, लेकिन वो रास्ता बताएगा, उससे आपका लाइफ चेंज हो सकता है। जैसे कि भौतिक व्यक्ति रहता है ना, उसका कैसा फायदा होता है, देखो भौतिक व्यक्ति को तबीयत अच्छा नहीं होता है, वो एस्ट्रोलॉजर को दिखाता है, ठीक है, और उसको पता चला कि आगे 1 साल के लिए और तबीयत खराब रहने वाला है, तो उसका सजेशन है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, आपका पैसा बच जाएगा, वरना आपका पैसा चला जाएगा। तो ऐसा उसको पैसे बचाने में काम करता है। भक्तों के लिए तो और अच्छा है, नेक्स्ट ईयर में और अच्छा भक्ति करने वाला जब समझ में आता है, तो फिर भक्त और भी प्लान कर लेते हैं मंदिर बनाने का। यस, अच्छा है माता जी, आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीख सकते हैं, अच्छा है। जो भी पसंद है प्रभु जी, आपके पास सीखना है प्रभु जी, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करते हो, एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा देते हो, ठीक से दिमाग में आएगा। यस कौन माता सा जी, कोशिश ग्रह करता हूँ माता जी। अभी तक तो मैंने ऐसे कुछ शुरू नहीं किया है माता जी, देखता हूँ फ्यूचर में शुरू करेगा, डेफिनेटली बताता हूँ। ऑनलाइन में शुरू किया तो देख। हरे कृष्ण।
यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रसाद प्रभु जी, इसका मतलब कहते हैं कि ड्योटी से ही व्यवहार करना चाहिए। ओके। हाँ प्रभु जी, तो अब हमें कुंडली का मेल देखना चाहिए या नहीं प्रभु जी? देखिए मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। डिवोटी को डिवोटी से ही शादी करना चाहिए क्या, ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा, मैरिज मैच देखना चाहिए क्या, है हाँ ना। इस पर ओके। हाँ अब देखिए माता जी, डिवोटी अगर बोल देंगे ना तो वो महामंत्र अच्छे से जप करेगा, फोर रेगुलर प्रिंसिपल फॉलो करेगा तो वो डिवोटी है, ठीक है। लेकिन इस वो पर कन्नड़ हाँ। नहीं बोलेगा, ठीक है। हाँ और वो कोई और भाषा का रहेगा, ठीक है। क्या उससे शादी कर पाएंगे क्या कोई? तो नहीं करेंगे, ठीक है। वो चाहेंगे कि वो कंफर्टेबल रहे अपने भाषा से। जो भाषा होता है वो एक्सप्रेस करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। हाँ मतलब हाँ एक दूसरे का प्रेम हो, गुस्सा हो या कुछ चेतना एक्सप्रेस करने के लिए बहुत अच्छा है वो। तो इसलिए अपना ही भाषा का पहला शादी करने का सोचेंगे। फिर उसके बाद इंडियन होना चाहिए, फॉरेनर तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं। उसके बाद वो डिवोटी है लेकिन सेटल है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो बोलेगा मैं डिवोटी हूँ और मैं पेड़ के नीचे बैठता हूँ तो शादी नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो सेटल भी होना चाहिए। तो फिर तो माता जी इसमें ना फिल्टर ज्यादा लगता है, समझ रहे हैं? हाँ प्रभु जी। इतना फिल्टर लगने के बाद एक दो मिलेगा, उसके साथ आपका 36 गुण नहीं मिलेगा। मंगल दोष आ जाएगा। तो फिर शादी होना मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमारा कम्युनिटी को और अच्छा बढ़ाएंगे हम, तो इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो सब ज्यादा ऑप्शन रहेगा। अभी के लिए कम ऑप्शन रहता है। तो इसीलिए आपको डिवोटी या अच्छा डिवोटी आगे बन सकता है, ऐसा देखकर शादी करना चाहिए, ठीक है। डिवोटी है तो बहुत अच्छा है। अगर डिवोटी नहीं है तो कम से कम वो भक्ति के लिए फेवर है कि नहीं, वो देखना चाहिए। उसके बाद उससे सबसे इम्पोर्टेंट है 36 गुणे मिले या नहीं मिले, उसका भाग्य अच्छा होना चाहिए उसके वाइफ के साथ जिंदगी बिताने का। भाग्य अगर अच्छा रहेगा ना माता जी, तो कोई हाँ बड़ा सा दिक्कत नहीं आएगा, वो बना रहेगा। अगर भाग्य खराब है, वो शादी करता है तो शादी तो हो जाएगा, भाग्य अच्छा नहीं रहने के कारण उसको भोग नहीं पाएगा, मतलब वो उस ग्रस्त में नहीं रह पाता है। वो लड़की का भी हो लड़का हो दोनों का भी हॉरोस्कोप भाग्य अच्छा होना चाहिए उनका। हाँ यस माता जी। मैंने तो बहुत डिफिकल्टी फेस करे प्रभु जी। हाँ माता जी, अभी और एक आप मैच के बारे में प्रश्न किया है तो और एक आप जान लीजिए। जो हाँ 36 गुण देखते हैं ना आज के दिन में, और 36 को आने के बाद भी प्रभु जी, वही अगर बता रहा हूँ, हाँ पूरा एक बता देता हूँ प्रभु। माता जी। हाँ प्रभु जी। ये जो 36 गुण है ना, ये जनरल देखने का तरीका है, ठीक है। हाँ हाँ प्रभु जी। अभी आज का दिन में कोई नक्षत्र चल रहा है, ठीक है। आज के दिन हम्म में एक नक्षत्र अप्रोक्सीमेट एक नक्षत्र पकड़ते हैं, वो है अश्विनी। आज अश्विनी हम्म नक्षत्र है, दिन भर अश्विनी नक्षत्र ही रहेगा माता जी। उस व्यक्ति का हम्म राशि जो है मेष राशि रहेगा, ठीक है। हाँ और एक व्यक्ति का कोई एक राशि रहेगा, ठीक है। हम्म पहला क्वेश्चन है कि इस पूरा दिन में जितने बच्चे जन्म लिए वो सब क्या उनका जीवन सेम रहेगा? नहीं प्रभु जी। लेकिन उनका राशि नाम नक्षत्र से सेम है, ठीक है। हाँ तो तो वो सेम प्लेस नहीं पर रहेगा, तो उसके ऊपर हम निर्णय नहीं ले सकते हमारा जीवन का, ठीक है। हाँ हाँ प्रभु जी। लेकिन जब 36 गुण देखते हैं ना, तो बस ये राशि और नक्षत्र डाल के ही देखते हैं। यस प्रभु जी। तो वो है जनरल माता जी। जनरल को लेकर हम स्पेसिफिक निर्णय नहीं ले सकते, ठीक है। अगर ऐसा लेना चाहिए तो फिर कुंडली को स्किप कर दो, फिर ये राशि नक्षत्र को ही देखो, बस हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हाँ हॉरोस्कोप के अंदर 27 नक्षत्र, 12 राशियां, नवग्रह, ये सब मिलकर ही हमको एक प्रेडिक्शन मिलते हैं। लेकिन इतना गुण मिलान में इतना नहीं देखते हैं, तो वो एक सिस्टम फेलियर सिस्टम है एक्चुअल में। वो देखने जाएंगे तो 36 गुण मिलेगा, लेकिन वो व्यक्ति को अगर पूछेंगे तो बोलेगा मुझे नहीं जमता है। ठीक है। हाँ 36 गुण नहीं मिलता है, उसको पूछेंगे वो बोलेगा हमको बहुत अच्छा जमता है। तो ये एक जनरल है माता जी। जैसे आपको बताऊं,
इंडिया कभी भी दूसरा देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है, ना वार किया है डायरेक्ट जाकर अपने तरफ से, लेकिन जो आया है उसको मारा है। तो इसका लिए अपना इंडिया का नाम है शांतशील देश है ये, ठीक है। और ये स्पिरिचुअल देश है, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी ज्यादा है, ठीक है। अब हम देखते हैं माता जी, किसी का कर्नाटक में एक मैसूर सिटी में किसी का एक कार थोड़ा सा धक्का लग जाता है किसी के साथ, उसका शांतशीलता हमको समझ में आता है, कितना शांत है वो, ठीक है। तो वो देश के लिए बोल सकते हैं, लेकिन वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए बोलना मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए वो एक राशि वो जनरल बताया है उसका गुण है, लेकिन वो राशि इसके लिए इतना एग्जैक्ट काम कर रहा है वो पता नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए हॉरोस्कोप के अंदर जाके देखेंगे तब पता चलेगा कि सच में इसका नाड़ी क्या है। जो हमको बता रहे हैं ना राशि के अनुसार नाड़ी, वो नहीं काम करता है हमको, वो हमारा हॉरोस्कोप के अंदर लग्न के अनुसार नाड़ी काम करता है। वो सब जब हॉरोस्कोप देखते हैं तो समझ में आता है मतलब, ठीक है, फिर निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। जो मैरिज मैच देखने का तरीका अलग है माता जी, जो तरीका है वो एक टेस्ट के लिए लिया हुआ फॉर्मेट है, वो इतना काम नहीं करता है, उसको लेकर ज्यादा हमको निर्णय नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु हम जी मैरिज मैच के लिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं प्रभु जी? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं माता जी। हाँ प्रभु जी, आपका नंबर मिल गया, सही तो अच्छा। नंबर शेयर करेंगे माता जी हम लोग ग्रुप में। हाँ यस माता जी, ओके माता जी, हाँ थैंक यू सो मच माता जी। प्रभु जी ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे जो मांगलिक होता है बच्चा, उसके लिए भी मांगलिक ही देखना पड़ता है, जो भी ब्राइड या ग्रूम, ये कहाँ तक सच है प्रभु जी? जैसे यस यस, अच्छा प्रश्न है माता जी। मंगल, देखो मंगल करके ग्रह हमने सुना है, ठीक है। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, मैं सेनापति में कार्तिकेय हूँ, तो वो कार्तिकेय का रिप्रेजेंटेटिव ही है ये मंगल ग्रह। तो मतलब है झगड़ा, बचाना, साहस करना, ये सब काम करता है। तो ये वाला ग्रह मतलब झगड़ा वाला ग्रह है, ठीक है। एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए याद रखो, झगड़ा वाला ग्रह है। तो हमारे हॉरोस्कोप में 1, 2, 4, 7, 8, 12 इस हाउसेस में ये मंगल ग्रह आएगा, उसको हम मंगल दोष ऐसे मानते हैं, ठीक है। माता जी हमारे पास 12 राशि है, 12 में 6 तो ये खा लिया है, ठीक है। तो बचा कुछ नहीं है उधर। तो कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा लोगों को मंगल दोष रहेगा ही, ठीक है। लेकिन ये और डीपली जानने का तरीका में जानना चाहिए, ये ऊपर से देखने के तरीके में हम फंस जाते हैं। मंगल दोष नहीं होता है तो भी हम उसको मानते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा मंगल दोष कोई बोलते हैं माता जी, तो इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और वो जनरल तरीका है, इसलिए उसको आप ज्यादा टेंशन नहीं लो, उसको लेकर कुछ चिंता नहीं करें कि मुझे मंगल दोष बताया या काल सर्प दोष बताया। ये सब जनरल प्रेडिक्शन है उसमें, या आप भी अगर अगले ही दिन से ये सब शुरू कर सकते हो देखना, जनरल अगर देखना है तो। स्पेसिफिक अंदर जाके देखना है माता जी तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, जुड़वा बच्चा जन्म लेता है ना माता जी, जी प्रभु जी, वो बच्चा है ना माता जी, आज के दिन में 15 to 20 मिनट्स के अंदर ही जुड़वा बच्चा जन्म ले लेता है, ठीक है। पहला 1 घंटा होता था, लेकिन आज के दिन में 15 to 20 मिनट्स। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये लग्न जब चेंज होता है तभी एक हॉरोस्कोप चेंज होता है, तब तक कोई ग्रह अपने जगह से नहीं हिलता है। 1 मिनट 2 मिनट में कोई ग्रह नहीं हिलता है, ठीक है। तो लग्न जब चेंज होगा तब एक हॉरोस्कोप चेंज होता है। उसके लग्न के अंदर भी एक नक्षत्र का 50 मिनट्स है, वो 50 मिनट्स तक जब चेंज नहीं होगा तो लग्न का नक्षत्र भी नहीं चेंज होता है, तो सेम हॉरोस्कोप दिखेगा, ये मेरा कहना है, मेरा नहीं है, एस्ट्रोलॉजर का कहना है। जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उसको, उनको तो ये पता रहेगा। हाँ, कि 15-20 मिनट में चेंज नहीं होगा वो लगन, नहीं होता है। तो फिर हम जब मेरा 15-20 मिनट हम जब बोलेंगे ना एस्ट्रोलॉजर को, वो बोलेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप दे दो सम, वो हम देख लेते हैं। लेकिन होता है क्या है, 12 ही हॉरोस्कोप निकलता है एक दिन में माता जी, ठीक है।
तो जुड़वा बच्चे का भी हॉरोस्कोप सेम दिखता है जब देखते हैं, लेकिन उनका स्वभाव ये वो सब कुछ अलग रहता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये हॉरोस्कोप तो सेम दिखा रहा है। तो इसका ऐसा है माता जी, हॉरोस्कोप के अंदर एक नक्षत्र होता है ना, मैंने स्क्रीन जब शेयर किया था उसमें एक अश्विनी भरणी ऐसे नक्षत्र लिखा था, आपने देखा होगा? नहीं प्रभु जी, उतना ध्यान नहीं किया। ओके ठीक है ठीक है। ये वाला है ना, ऐसा एक कॉम्प्लिकेशन आया था माता जी 1970s में। कृष्णमूर्ति करके एक व्यक्ति थे तमिलनाडु में, उनको जुड़वा बच्चे में किसका शादी पहला होगा ऐसा उनको प्रेडिक्शन निकालना था, लेकिन हॉरोस्कोप सेम दिख रहा है। तो उन्होंने क्या किया, विंशोत्तरी दशाभुक्ति ऐसे एक मैथमेटिक्स है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उसको उन्होंने लग्न के साथ जोड़ा। लग्न का जो नक्षत्र है उसको उन्होंने उसका जो नक्षत्र है उसको नवग्रह को डिवाइड करके दिया, एक नक्षत्र को 9 में डिवाइड करके दिया, तब निकलता है मदर जी 27 नक्षत्र का 243 ऐसे नक्षत्र निकलता है। उसके बाद उसमें राहु को और नक्षत्र उन्होंने जोड़ के भेजा। एक सेकेंड माता जी। सॉरी माता जी, ना 27 नक्षत्र को, एक नक्षत्र को नवग्रह को जब बांट के दिया माता जी तो 243 आता है। उसके बाद राहु को और दो दो नक्षत्र, एक एक नक्षत्र ऐसे बढ़ते हैं तो उपनक्षत्र, तो 249 उपनक्षत्र बनते हैं। तो तब उनका कैलकुलेशन के बाद पता चला कि एक दिन में 249 हॉरोस्कोप बनते हैं। तो वो थोड़ा सा और एक्यूरेट निकालने के लिए मदद करता है। जैसे कि एग्जाम्पल बताया था ना, इंडिया के अंदर स्टेट बदलता है, स्टेट के अंदर अपना सिटी बदलता है, सिटी के अंदर अपना गांव, उसके अंदर अपना घर। तो इतना माइन्यूट जब जाते हैं तब वो सच में ग्रह क्या काम कर रहा है पता चलता है, ऊपर से देखने से नहीं पता चलता। यस माता जी। इसके लिए मैं पहला चाणक्य ऐसे जो नाम लिखा था ना, एक्चुअल में मेरा वो एस्ट्रोलॉजी जो करता हूँ उसका नाम चाणक्य केपी एस्ट्रोलॉजी ऐसे रखा हूँ मैंने। तो नाम पढ़ के ही लोग चाणक्य ऐसे बुलाते हैं पता नहीं होता है उनको, लेकिन उसके साथ मैंने 2 अक्षर जोड़ा है केपी, उसका मतलब है कृष्णमूर्ति पद्धति। तो उस पद्धति से जब देखते हैं तो और अच्छा हमको प्रेडिक्शन निकलता है माता जी। यस ओके, थैंक यू प्रभु जी। हाँ थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, काफी कुछ हमें थोड़ा पता नॉलेज हुई है। तो माता जी आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप आराम से बैठ के सुनोगे तो समझ पाओगे। जी प्रभु जी, थोड़ा बेसिक नॉलेज 1% तो मालूम पड़ा है, नहीं तो कुछ भी नहीं पता था। यस यस माता जी, समझ रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सवाल हो गए आज, तो इसका ट्रांसलेशन भी हम लोग नहीं कर पाए। तो ब्रह्मांड के दिव्य शिक्षक कृष्ण हमारे जीवन की स्पष्टता, आनंद, आत्मविश्वास और आशा के साथ जीने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ है। तो हमें ज्योतिष पर निर्भर होना जरूरी है या नहीं, हम पर छोड़ा है? सही है प्रभु? ज्योतिष शास्त्र भगवान ने ही दिया है, ठीक है, दिया हुआ। और हमको जब हम भगवान से अभी बात नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, अभी हमको कोई कुछ तकलीफ हो रहा है या अच्छा भी हो रहा है तो हमको नहीं समझ में आता है। हम खास करके डिवोटी ज्यादा दुखी होते हैं कि मैं अभी इतना चैंटिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे तकलीफ हो रहा है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो भगवान के ऊपर नाराज हो जाता है। समझ रहे? हाँ, इसीलिए ये सब है ना माता जी, एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऑलरेडी भगवान ने दिया है। आपको जब समझ में नहीं आता है तो अब एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आप समझ सकते हो कि आगे क्या चलने वाला है, उसके अनुसार आप निर्णय ले लीजिए। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो डिवोटी को हाँ जी, डिवोटी को ज्यादा इम्पोर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी। बाहर के लोग ऐसे कष्ट में रहने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है, तो उनके लिए इतना जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक। यस। दूसरा और एक बात बताना है सबके लिए। हाँ बोलिए।
अच्छा दिन बुरा दिन, ऐसा होता है ना? आप म्यूट ಮಾಡ್ತೀನಿ अच्छा दिन बुरा दिन, ठीक है। तो अच्छा दिन उसको बोलते हैं जो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा दिन वो होता है कि हमारे साथ बुरा होगा। पूरा दुनिया में मतलब जी सबके साथ एक ही दिन में अच्छा होता है क्या? तो नहीं होता है। सबके साथ एक ही दिन में बुरा भी नहीं होता है। जैसे कि एक दीपावली ले लो या अक्षय तृतीया ले लो, उस दिन में अच्छा दिन ये बोलते हैं, लेकिन म्यूट कर लीजिए माता जी, इनका तो आवाज आ रहा है बैकग्राउंड। वीणा माता जी म्यूट। ओके, सो अच्छा दिन, दीपावली अच्छा दिन है माता जी। उस दिन हम अगर किसी को पूछे ना, मैं कुछ शुभ कार्य आरंभ करना चाहता हूँ, तो बोलेंगे आप उस दिन करें। लेकिन उस दिन किसी ना किसी का एक्सीडेंट होता है, बुरा होते हैं, तो उनके लिए कैसा वो अच्छा दिन रहा? तो उनके लिए वो अच्छा दिन नहीं रहा। तो फिर पंचांग में तो कैलेंडर में लिखा है अच्छा दिन है, तो इसका मतलब ऐसा है माता जी, पूरा दुनिया के लिए अच्छा दिन है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उसके कर्म के अनुसार वो दिन बुरा था उसके लिए। जैसे कि रावण रावण तो मर गया ना दुनिया के लिए अच्छा दिन था, रावण के लिए बुरा दिन था। तो उसी उसी तरह माता जी, अच्छा बुरा दिन जो है इंडिविजुअल होता है। एक व्यक्ति को कार खरीदना है, उसके लिए वो दिन पूरा दुनिया के लिए नहीं खरीद रहा है ना, इंडिविजुअल खरीद रहा है उसके लिए अच्छा है कि नहीं देखना है। दूसरा, जब मैरिज होता है, हम पंचांग में देखते हैं वो जनरल लिखते हैं, लेकिन उस दिन में वो दो व्यक्ति का रिश्ता शुरू हो रहा है, उनके लिए अच्छा होना चाहिए। और वो फंक्शन हो रहा है, ठीक है, सब लोग मिल रहे हैं, तो वो फंक्शन अच्छा होने के लिए इनका फैमिली का अच्छा होना चाहिए। तो वैसा इंडिविजुअल अच्छा है कि नहीं देखना ज्यादा जरूरी होता है। मतलब एस्ट्रोलॉजी को डेली लाइफ में हम यूज कर सकते हैं। हाँ जी। जैसे बिजनेसमैन रहते हैं ना, उनको रोज मीटिंग करना पड़ता है और कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कौन सा अच्छा दिन है बुरा दिन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम उन दिन को बदल सकते हैं, लेकिन हमको बदल सकते हैं हम। जो हमारा अच्छा दिन है वो पहला हम देखेंगे अच्छा दिन में क्या क्या हो रहा है ना। डायरेक्ट इसको मानने का जरूरत नहीं है। अच्छा हो रहा है, और बुरा दिन भी हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट, बुरा हो रहा है, तो बुरा दिन जो जो हम आगे से लिख के देंगे, उस दिन में उसको अवॉइड करना है। जो अच्छा दिन है उसमें काम करना है, तो उसका फल मिलता है माता जी, पॉजिटिव रहता है। सही है प्रभु जी, आपने हमें बहुत ज्ञान दिया, तो आपका हम लोग बहुत आभारी है। आपने अपने व्यस्त जीवन में हमारे लिए समय निकाला, और आगे भी कहीं हमें जरूरत पड़े तो हम लोग आपका कांटेक्ट करेंगे, कभी समय निकाल के हमें क्लास लीजिएगा। तो आपका हम लोग धन्यवाद करते हैं। तो कृष्ण भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बना रहे। तो अभी हम आपसे विदा लेंगे, आगे बढ़ेंगे प्रभु जी। यस यस, थैंक यू माता जी, मुझे ऐसा एक मौका देने के लिए बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोच रहा था कि मैं कैसे बोलूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आप लोग कोई कुछ बोले नहीं, तो मुझे और भी उत्साह बढ़ गया बोलने के लिए, तो मैं बोलते रहा ठीक है। यस, थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे धन्यवाद। कृष्णा। धन्यवाद। यस माता जी, मैं एग्जिट करूं?